Okay, so good evening, all of you. Akshat, Ashish, Atreya, Bhavna, Chetan, Deepak, Devang, Dhaval, Harsh, Jay, Keshav, Khushi, Komal, Lavish, Mahima, Payal, Prakash, Prashant, Pratik, R. Sharma, Riya, Rohit, Rishabh, Sandeep, Shivik, Siddhant, Smith, Sunil, Vikash, ZMA Kaur. So CFA level 3 में क्या है कि we know the number of students would be less, so it's possible to call out everybody's name. More or less I did. ठीक है ना? So what is the discussion for today? The discussion for today is regarding the constructive response examinations. My focus is on August 2026, but believe me, अगर किसी का एग्जामिनेशन Feb 2027 में है तो भी उसको फायदा होगा. It is for August 2026. But if somebody has an examination in Feb 27, that person will also gain. But sir, you may explain some technical stuff with the help of the real content, but I have not started preparing for CFA level 3. How will I understand? That's the secret of CFA level 3. In CFA level 3, you pick up any topic, any content, and once you go inside the same through example, you start understanding, and you realize that it is like unconscious competence. You understand this word, unconscious competence, that we know the stuff, we are not aware of the same. It's just the application required and time investment required. So let me start with an example and then I will generalize कि constructive response में और क्या चीज़ ध्यान रखनी है. Before I start, let me tell you one thing, a compliment. अभी जो पेपर्स करेक्ट हो रहे हैं August 26 में पर्सनल ग्रेडेड मॉक्स, इस बार के पेपर्स में the way in which you all are writing the answers is much better as compared to the earlier terms. So I know for sure August 2026 में results और ज़्यादा better होने वाले हैं because people are writing to the point, people are not writing extra. अगर दो पूछा है तो दो ही लिख रहे हैं, ठीक से रीड कर रहे हैं. So that's a compliment to your batch. Okay, the results in August 2026 is going to be very good because you all have more or less understood what and how to write. अभी भी थोड़ा सा शॉर्टन हो सकता है, बट क्या पता आपके पास टाइम होगा एग्जाम में तो ज़्यादा लिखने में हर्ज क्या है अगर टाइम की इशू नहीं आए तो. ठीक है ना? तो फिर भी अपने एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ डू यू फेयर. सो आई एम टेकिंग यू इनटू अ पर्टिकुलर आइटम सेट बिकॉज यू नो एग्जाम्प्लीफाई करके ही प्रैक्टिस होता है, जनरल ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है. ओके, सो आई एम टेकिंग यू टू पर्टिकुलर आइटम सेट. दिस इज द आइटम सेट. Catherine CFA is a fixed income portfolio manager at ZAS, a US based investment firm that manages both liability driven mandates, that's chapter 1 of fixed income, and opportunistic credit strategies for endowments and foundations, that is the last chapter of fixed income. The first chapter was liability driven mandates immunization, and the last chapter was active credit strategies. ZAS has been hired by Ravenbrook Foundation to immunize a single cash outflow liability of USD 70 million due in 8 years. Stop. I made a mistake. क्या मिस्टेक है? सुनना प्लीज. इन CFA लेवल 2 आइटम सेट्स को कैसे अप्रोच करना है क्या पढ़ाया गया था? इफ यू हैव स्टडीड लेवल 2 विथ मी, तो CFA लेवल 2 में आइटम सेट्स कैसे अप्रोच करना, उसका तरीका क्या था, स्ट्रैटेजी क्या था? डू यू रिमेंबर? अपना तरीका क्या था CFA लेवल 2 में आइटम सेट करने का? अपने इस तरह से रीड करते थे. फर्स्ट पैराग्राफ यूज टू बी भूमिका, कोई काम का नहीं है, और उसके बाद जाके जैसे जैसे रीड करते थे पता चल जाता था आप क्वेश्चन पूछा होगा. आई यूज टू कॉल इट सेगमेंट एंड स्ट्राइक अप्रोच. नहीं, स्टार्ट विथ क्वेश्चंस आई डोंट यूज टू डू. प्रकाश यू मे बी डूइंग मे बी, पर मैं कभी रेकमेंड नहीं करता था. मेरा अप्रोच था फर्स्ट पैरा तो इंट्रोडक्शन है, फिर आप जैसे ही सेकंड पैरा स्टार्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा एक पोर्शन, और उससे क्वेश्चन पूछता था. नीचे गए वापस से ऊपर आए, सेकंड पार्ट पढ़े, वापस से क्वेश्चन गए, वापस से ऊपर आए, वापस से क्वेश्चन गए, वापस से ऊपर आए.
This is what I recommended. Obviously, people might be following their own technique. तो segment and strike approach we used to follow and it really worked well because एक rhythm रहता था, time waste नहीं, जो read किए उसी का question पूछा है, okay? और एकदम क्लिक करता है एग्जामिनेशन में CFA लेवल 2 में segment and strike approach. CFA level 3 में constructive response में do not use segment and strike approach. CFA level 3 में do not use segment and strike approach. I forgot to mention, I'm saying it for the first time perhaps. Instead, CFA level 3 में go to the question और क्वेश्चन को रीड कर लो. मैं आइटम सेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं. क्वेश्चन रीड कर लो. बेस्ड ऑन एग्जिबिट 1, recommend which portfolio XYZ best immunizes रेवन बुक्स लायबिलिटी. सिंस आपका सिलेबस किया रहेगा, आपको पता रहेगा टॉपिक कौन सा है. ये टॉपिक पता चल रहा है, ये डिटरमिन पता चला. जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन. तो वी आर टोटली क्लियर. नंबर 1, नंबर 2, दो आंसर देने हैं. थोड़ा सा एरिया भी पता चल रहा है कि सर लायबिलिटी को इम्यूनाइज करना है. रेकमेंड का मतलब होता है योर आंसर इज गोइंग टू बी से एक्स, बस दैट्स इट. यू डोंट हैव टू से वी रेकमेंड एक्स या एक्स इज द बेस्ट पोर्टफोलियो. केवल एक्स लिख दो, फुल मार्क्स. और जस्टिफाई में यू हैव टू एक्सप्लेन वाई एक्स. यू हैव टू एक्सप्लेन वाई एक्स. सीएफए इंस्टीट्यूट को मेल किया गया था कि क्या जस्टिफिकेशन में हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को नेगेट करना पड़ेगा क्या. लिसन केयरफुली. सीएफए इंस्टीट्यूट को मेल किया गया था पूछने के लिए कि व्हेन वी आर रेकमेंडिंग एक्स, देन इन द जस्टिफिकेशन डू वी हैव टू नेगेट वाई एंड जेड, कि वाई क्यों नहीं लिए, जेड क्यों नहीं लिए. आपके अनुसार व्हाट इज द आंसर. जब जस्टिफिकेशन पूछा है, आपने एक्स का आंसर दिया, तो उस केस में जस्टिफिकेशन में, सॉरी रिकमेंडेशन में एक्स का आंसर दिया, अब जस्टिफिकेशन में वाई और जेड को नेगेट करना पड़ेगा क्या. दिस वाज अ बिग कंफ्यूजन. आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, बिलीव मी. So CFA Institute has replied to the mail and said no, not required. Not required. Very very important. Remember, जब आपको एक्स वाई जेड एसेट एलोकेशन में से पूछ रहा है कौन सा एसेट एलोकेशन, और आपको पता है एक्स आंसर है, तो उस केस में जब जस्टिफिकेशन देंगे तो वाई और जेड आंसर क्यों नहीं है ये लिखना जरूरत नहीं है, तो मत लिखना. सर लिख दे तो हर्ज थोड़ी है. हर्ज नहीं है, आपका टाइम जाएगा. इज इट क्लियर. Justification में you don't have to talk about y and z. So I want to talk about it. That's the different thing. ठीक है, but you don't have to. You're not required to talk about y and z. सर सीएफए इंस्टीट्यूट के आंसर्स में मैंने देखा है वो लोग y और z का भी समझाते हैं. सीएफए इंस्टीट्यूट का आंसर्स आइडियल आंसर्स नहीं है एग्जाम के लिए. दे आर नॉट द आइडियल आंसर्स. दे आर द आंसर्स टू लर्न एंड रिवाइज द टॉपिक. They are the answers to learn and revise the topic. They are not the answers to produce in the examination. I hope I have made my topic, made my point clear. Okay. एक समय पे आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज. आई थिंक 2 साल पहले शायद मैंने बोला हुआ है कि अगर एक्स का आपका आंसर है तो वाई और जेड का नेगेशन भी समझा देना. आई एडमिट. ओके, अगर कोई बहुत पुराना स्टूडेंट है तो यहाँ पे, बट मेल करके क्लैरिफाई किए हैं, नहीं रिक्वायर्ड है. ठीक है ना. तो आई होप ये याद रहेगा आपको. तो मेरे को केवल वाई एक्स बताना है. ओके. और मेरे को मन में याद भी आ रहा है इम्यूनाइजेशन में क्या क्या था, कि ड्यूरेशन मैचिंग एंड ऑल दैट. चलो, तो ये पता चल गया अपने को. अब इतना रीड करेंगे, सारा क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे. वी विल नॉट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी विल नाउ गो अप एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन. फर्स्ट पैरा हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, कोई काम का नहीं होता है. तो फर्स्ट पैरा को कभी भी इज्जत से नहीं पढ़ना चाहिए. टू सेव टाइम इज्जत से मत पढ़ो. ओके. रीड वेरी ब्रिस्कली. ओके, फिक्स्ड इनकम का बात हो रहा है. अब ZAS has been hired by Ravenbook Foundation to immunize a single liability of USD 70 million due in 8 years. सिंगल लायबिलिटी. तो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, रिप्लाई. दो ऑप्शंस रहेंगे, आप रिप्लाई करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सिंगल लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन में ऑप्शन नंबर 1, अपने को ये जो 8 साल बाद 70 मिलियन का लायबिलिटी है ना, तो 8 साल बाद वी शुड बी एबल टू मीट द लायबिलिटी, उस पर फोकस है. 8 साल बाद 70 मिलियन मीट कर पाए, इसके ऊपर फोकस है. दैट्स ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2, सिंगल कैश फ्लो लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन में इस पे फोकस है कि आज के दिन जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो तो जो मेरा लायबिलिटी और जो एसेट है वो दोनों बराबर अमाउंट से चेंज हो. टेक योर टाइम. ऑप्शन नंबर 1, सर सिंगल कैश फ्लो लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन का मतलब वो जो 8 साल बाद लायबिलिटी है ना, वो 8 साल बाद वो लायबिलिटी को मीट कर पाए, उस पर फोकस है. ऑप्शन नंबर 2,
नहीं सर, उस पे इस पे फोकस है कि आज के दिन इंटरेस्ट रेट चेंज होने से जो लायबिलिटी और एसेट चेंज होगा दोनों बराबर चेंज हो, आपको इस तरह से इम्यूनाइज करना है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एवरीबडी हैज सेड ऑप्शन वन, ग्रेट, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, खुश कर दिया। ओके, आज का शाम बना दिया। ओके, जबकि मल्टी पीरियड लायबिलिटी में जहां तीन तीन लायबिलिटीज है, वहां पे फोकस इज नॉट ऑन दैट, फोकस इज नाउ कि आज के दिन जो दोनों का बीपीवी है ना, बीपीवी सेम होना चाहिए, बेसिस पॉइंट वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए। बीपीवी ऑफ एसेट शुड बी इक्वल टू बीपीवी ऑफ लायबिलिटी। इनकेस कोई भूल गया है बेसिस पॉइंट वैल्यू, इट इज बेसिकली द मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, okay, and multiplied by 0.0001. Basis point value is the money duration multiplied by 0.0001. What is money duration? It is the money into duration. जो वैल्यू है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय मॉडिफाइड ड्यूरेशन। याद आ रहा है? तो मल्टीपल लायबिलिटीज में आज से मतलब आज के दिन रूपी चेंज शुड बी सेम, एसेट और लायबिलिटी में द रूपी चेंज और द डॉलर चेंज शुड बी सेम। ठीक है, तो बीपीवी को इक्वेट करते हैं। ऑफ कोर्स दोनों में ही कन्वेक्सिटी ऑफ द एसेट शुड बी स्लाइटली हायर देन कन्वेक्सिटी ऑफ द लायबिलिटी। याद आ रहा है? convexity of the asset should be slightly higher than convexity of the liability. याद आ रहा होगा? convexity of the asset slightly higher. Why higher? Because अगर अगर अपने बीपीवी या ड्यूरेशन को मैच कर दिए तो एट द पॉइंट ऑफ करंट इंटरेस्ट रेट दोनों का स्लोप सेम है, एसेट का लायबिलिटी का दोनों का स्लोप सेम एट द करंट इंटरेस्ट रेट। पर उसके बाद जो कर्व मुड़ता है ना, तो एसेट का कर्व हमेशा लायबिलिटी के कर्व से ऊपर रहेगा। इफ यू मेक कन्वेक्सिटी स्लाइटली हायर, एसेट का कर्व हमेशा लायबिलिटी से ज्यादा रहेगा। याद है वो फिक्स्ड इनकम का कर्व जो बनाते थे, द टेंजेंट एंड द स्लो एंड द कर्व, तो वो एट द करंट पॉइंट तो लायबिलिटी और एसेट का स्लोप सेम है, ठीक है, बिकॉज हम लोग ड्यूरेशन मैच कर रहे हैं। एंड कर्व के नीचे और बने उस पॉइंट के नीचे और ऊपर द एसेट का कर्व लाइज अबव द लायबिलिटी का कर्व, इट मूव्स मोर शार्पली, it moves more sharply, convexity got to be higher. So if it moves more sharply, तो convexity जरा सा क्यों higher? जोर से higher? Give me the reply. Convexity जरा सा higher क्यों चाहते? जोर से higher होने में क्या हर्ज है? Convexity जरा सा higher क्यों चाहते अपने एसेट का? जोर से higher होने में क्या हर्ज है? Why do we want convexity जरा सा higher? What is the problem? Convexity of asset is significantly more. Okay. So I like the answer, to the point answer दे रहे दिवांग शिवेक and all that structural risk. But एक मिनट, आप लोग भी मैसेजेस देख पाए? लेट मी डू एवरीवन, चैट एवरीवन कर देता हूं मैं, तो मैसेजेस सबको सबका दिख पाएगा। हाँ, ठीक है ना? आई थिंक अब आप लोग को चैट भी दिख रहा होगा। अब आप लोग को सबका चैट भी दिख रहा होगा। आई थिंक आप लोग को अब सबका चैट दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल रिस्क वगैरह आपने ठीक बोला, स्ट्रक्चरल रिस्क वगैरह आपने ठीक बोला। बट व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट कन्वेक्सिटी कॉस्ट्स, कन्वेक्सिटी का पैसा लगता है। Whenever you want to buy convexity na positive convexity, you have to pay a price for it, believe me. जैसे ऑप्शंस ऑन बॉन्ड बाई करके अपने कन्वेक्सिटी खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो कन्वेक्सिटी इज अ कॉस्टली अफेयर, इट पुल्स डाउन द यील्ड, इट पुल्स डाउन द यील्ड। ठीक है, तो कन्वेक्सिटी इज ऑलवेज कॉस्टली, अदरवाइज हु डजंट लव कन्वेक्सिटी? कन्वेक्सिटी मतलब रेट गिरेगा तो जोर से बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो शर्मा के गिरेगा। वी लव इट, एवरीबडी लव्स कन्वेक्सिटी। प्रॉब्लम इज दैट रेट बढ़ा गिरा नहीं तो, रेट बढ़ा गिरा नहीं तो हम तो पैसा दे के बैठ गए कन्वेक्सिटी का, जैसे अपने डेरिवेटिव्स में होता है। ओके, यू बाय कॉल एंड पुट, वाह डबल मस्ती, इस तरफ भी इस तरफ भी, क्योंकि डेल्टा चेंज होते जाएगा तो आपका गामा आपके फेवर में होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर आपने कॉल पुट दोनों बाई कर लिया, आपने डबल प्रीमियम दिया, वहीं रह गया, तो आप गामा का फायदा उठा नहीं पाए। ओके, आप गामा का फायदा उठा नहीं पाए। एनीवेज, सो सिंगल लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन में फोकस इज ऑन 8 years, इसलिए वी ट्राई टू इक्वेट विच ड्यूरेशन? ऑप्शन नंबर वन मैकुलेस ड्यूरेशन, ऑप्शन नंबर टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सिंगल लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन में अपने कौन सा ड्यूरेशन को मैच करते हैं, मैकोले या मॉडिफाइड? सिंगल लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन में कौन सा ड्यूरेशन को मैच करते हैं? मैकोले। एंड दिस वाज टॉट इन सीएफए लेवल 1। reinvestment effect and price effect cancel out each other at Macaulay duration. Okay, reinvestment effect and price effect cancel out each other at Macaulay's duration. Okay, and of course, present value of the asset should be greater than equal to present value of the liability. PVA greater than equal to PVL. So there were three conditions: PVA greater than equal to PVL, DA equal to DL, and CA slightly more than CL. I hope it's communicated. PVA greater than equal to PVL, DA equal to DL, and CA slightly greater than CL. CA slightly greater than CL. Okay, किसी का रिवाइज भी नहीं था तो पूरा रिवाइज हो गया होगा। सिंगल लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन।
और मल्टीपल लायबिलिटी इम्यूनाइजेशन में द बीपीवी ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी शुड बी सेम. ओके, बीपीवी जिससे डॉलर चेंज सेम आए, एंड कन्वेक्सिटी ऑफ द एसेट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द कन्वेक्सिटी ऑफ द लायबिलिटी. ओके, द होल पोर्शन गेट्स रिवाइज्ड. ओके, किसी का पेंडिंग चल रहा था तो एनीवेज, तो दो तीन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अकम्प्लिश कर रहे हैं. नॉलेज सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारा चीज एक साथ इन स्टेट ऑफ फ्लक्स चल रहा है. Liabilities present value calculated at the current spot rate is 67,240. तो 67.24 whatever, ठीक है, 67 to 40,000. That is the liability का PVL. 8 years is the Macaulay's duration, and its modified duration is 7.96. Modified duration is 7.96. अपने को उससे मतलब नहीं है, मैकोले से मतलब. मैकोले इज 8 years. मैकोले इज 8 years. ठीक है. विल यू कैलकुलेट कैल्सी में इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इस लायबिलिटी का? आई एम वेटिंग फॉर यू. इस लायबिलिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? लायबिलिटी का CFY क्या है? यील्ड क्या है? यस प्लीज. लायबिलिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? प्रशांत, गोपाल, महिमा, संदीप, अंशुल, सिद्धांत, व्हाट इज द लायबिलिटी का R? व्हाट इज द लायबिलिटी का R? व्हाट इज द लायबिलिटी का R? क्या पता कहां काम पड़ जाए. लायबिलिटी का यील्ड क्या है? आई एम नॉट गेटिंग दी आंसर्स. किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक. लगता है कैल्सी के बिना बैठे हैं. ओके, अंशिका का आंसर आया 3.71%. दिवांग का आंसर 0.504%. अंशिका का 3.71, देवांग का 0.504. वेटिंग फॉर अदर आंसर्स. 0.504 सभी जन बोल रहे हैं 0.504. तो बेसिकली मेरे को तो लगता है दो तरह से निकाल सकते हैं. वन इज 67.24 प्लस माइनस पीवी 70 एफवी 8N CPT I by Y. 67.24 प्लस माइनस पीवी 70 एफवी 8N CPT I by Y. सर ये निकालने का जरूरत है क्या? नहीं है. अरे अपने जब करते हैं सम्स तो अपने सब कुछ करते रहते हैं ना, बिकॉज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, क्या पता कब डिस्कशन करने का मौका मिले, तो सब कर दो. और दूसरा तरीका था 8 डिवाइड बाई 7.96 द होल थिंग माइनस 1. 8 divided by 7.96 the whole thing minus 1 the whole into 100. 8 divided by 7.96 the whole thing minus 1 the whole into 100. तो 0.504% आ रहा है, काफी स्ट्रेंज है. ओके, तो वी कैनॉट क्वेश्चन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सम, बट डजंट सीम टू बी अ लॉजिकल फिगर बिकॉज 0.5% इतना कम थी. तो आई थिंक there should have been some different figures. The 70 million should have been 72 or 75 million, and the 7.96 should have been lower. Anyways, तो अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ क्वेश्चन का तो क्वेश्चन मिसकंस्ट्रक्टेड है. ठीक है ना. क्वेश्चन में 70 के बदले वो 80 या वॉट होना चाहिए था, और जो 7.96 है वो 7.24, ये सब कुछ होना चाहिए था. एनीवेज, हमको क्या फर्क पड़ता है. Convexity of the liability side is 35.2. To meet the mandate, Lewis has constructed three alternative bond portfolios using non-callable investment grade US corporate issues. Okay, non-callable investment grade US corporate issues. ठीक है. If you use structured instruments, in that case there is a structural risk. आप callable puttable bond ये सब यूज करोगे तो structural risk और ज्यादा हो जाएगा. तो use trade bonds. की स्टेटिस्टिक्स दिया हुआ पोर्टफोलियो एक्स वाई एंड जेड, इसी का पूछा था. एक्स या वाई या जेड, सीधा ध्यान जाए. सबसे पहले ड्यूरेशन किसका किसका 8 के पास है. ड्यूरेशन किसका किसका 8 के पास है. सर कौन सा ड्यूरेशन? मैकोले ड्यूरेशन. तो मैकोले ड्यूरेशन इन दोनों का 8 के पास है, दिख गया होगा. मैकोले ड्यूरेशन वाई और जेड का 8 के पास है. ओके, मैकोले ड्यूरेशन वाई और जेड का, सॉरी मैंने पता नहीं क्या बोला, वाई और जेड का 8 के पास है. एक्स तो गया. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू 6725. यस वो ज्यादा है 67,240 से. 67,200 वो कम है. ठीक है, तो इन दैट केस यही होगा, बिकॉज ये गलत है, इसमें ये गलत था. और कन्वेक्सिटी जो है, कन्वेक्सिटी कन्वेक्सिटी इसका 37.5 चलेगा, 35.6 भी चलेगा, 48.8 नहीं चलेगा. ओके, सो यू कैन सी. और ये 67.3 यहां पे ये चलेगा. So we can see that तीनों टिक कहां पे हो रहा है. It's happening in portfolio Y. So answer is Y. You should not write Y should be chosen. You should just write Y. यानी आंसर क्या होना चाहिए आपका एग्जाम में? आपका आंसर होना चाहिए ये.
मैंने आइडियल आंसर भी लाया है यहाँ पे, आई एम जस्ट शोइंग यू। एक तो इंस्टीट्यूट का टानाटुनी वाला आंसर है, टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, ये रहा टॉपिक को रिवाइज करना है तो, ठीक है। और एक है टू द पॉइंट आंसर, आंसर इज वाई। जस्टिफिकेशन नंबर वन, MVA ग्रेटर देन PVL, अमाउंट जरूर मेंशन कर देना। नंबर टू, DA इक्वल टू DL इक्वल टू 8। नंबर थ्री, कन्वेक्सिटी ऑफ एसेट should just exceed convexity of liability, 37.5 versus 35.2. This is the answer that should be written in the exam. Of course, the file will be shared with you. यही आंसर एग्जाम में देना चाहिए। Okay, bond Y is recommended. This is because immunization of a single liability requires three conditions. Number one, number two, number three. We find that Y has an MVA greater than PVL. We find that Y का macro duration is equal to duration liability. We know that a single liability का duration is equal to maturity. ये सब आप लिख रहे हो तो time waste कर रहे हो। Suppose somebody is explaining that single liability का duration is equal to maturity. क्यों? Why are you wanting to teach him? Single liability is like a zero coupon bond and therefore macro duration equal to maturity. लोग लिख के आते हैं एग्जाम में, मन पे हाथ रख के बोलो, लिख के आते कि नहीं आते हैं? तुमको फील होगा कि हाँ सर, हो सकता है हम भी लिखते हैं कि लायबिलिटी सिंगल है तो उसका जो ZCB के जैसे उसका सिंगल जो उसका मेच्योरिटी वही उसका मैक्रो ड्यूरेशन है। क्यों समझाना है तुमको? वाई वाई डू यू वांट टू एक्सप्लेन? ओके, ये जो समय यहां बचेगा कहां कहां काम आएगा? ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ आंसर यू शुड राइट। परहैप्स समबडी कैन ओवर ऑप्टिमाइज, हो सकता है मेरा भी उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, वट। तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया। अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, याद है? हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा डिसाइड कर लिए, एरिया समझ लिए क्वेश्चन में, तरीका समझे, फॉर्मेट ऑफ द आंसर क्या होगा, एरिया समझे किस एरिया से पूछा है, फिर से फॉर्मेट ऑफ द आंसर समझे और एरिया समझे। फॉर्मेट एंड एरिया क्या समझ में आ रहा है? फॉर्मेट मतलब जैसे जस्ट बोला था डिटरमाइन तो पता था एक्स या वाई या जेड, जस्टिफाई तो पता था जिसको चुनेंगे उसको जस्टिफाई, ठीक है ना। और एरिया कौन सा था? इम्यूनाइजेशन, ठीक है। Uh, Ashank is saying, sir, in recorded class, it was taught that in case of single liability, there should be at least dispersion, that is convexity. वही तो बोले, convexity should be slightly higher than convexity of the liability. हाँ, फिर convexity को dispersion से relate किया गया था कोर में, वो मेरे को ध्यान आ रहा है। ये convexity was related to dispersion. There was a formula also given. I do not remember the formula right now. ठीक है, because definitely convexity is a function of dispersion. ठीक है, और डिस्पर्शन से ही तो स्ट्रक्चरल रिस्क आता है, ठीक है ना। मैं टॉपिक का रिवाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने डोंट अंडरस्टैंड इट। अब एक एक चीज वहां का जाके बताएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। टू एलिमिनेट द ड्यूरेशन मिसमैच शोन समटाइम्स लेटर, to eliminate the duration mismatch shown sometimes later, determine the position, long or short, Lewis should take in treasury note futures. ओ, लगता है कुछ टाइम बीत गया। अपने इम्यूनाइज करने के लिए वो वाई चुन लिए थे, उसके बाद कुछ टाइम बीता होगा ना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, और उसके बाद बोल रहा है ड्यूरेशन मिसमैच हो गया, अब DA इक्वल टू DL नहीं है। हाँ, नहीं होता है तो वॉन्डरिंग आफ्टर सम टाइम, बट इट्स क्या बोलते हैं, स्टैटिक स्ट्रैटेजी और डायनेमिक स्ट्रैटेजी। डायनेमिक, इट इज नॉट अ हेज एंड फॉरगेट, इट्स डायनेमिक, डिस्कस किया हुआ है। तो बोल रहा है कि अब ड्यूरेशन मिसमैच हो गया, डिटरमाइन, डिटरमाइन बोला है, द कमांड वर्ड इज डिटरमाइन द पोजिशन, लॉन्ग और शॉर्ट। आंसर केवल वन वर्ड होगा, लॉन्ग या शॉर्ट। यू डोंट हैव टू से वी शुड टेक लॉन्ग और शॉर्ट, कुछ नहीं। लिविश शुड टेक इन ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स, ओके, ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स शी मस्ट ट्रेड, राउंड टू द नियरेस्ट होल कॉन्ट्रैक्ट। कैलकुलेट में तो आपको पता ही है, डायरेक्ट आंसर फुल मार्क्स। इफ यू वांट टू शो द कैलकुलेशन यू कैन शो, समझ गए? डायरेक्ट आंसर फुल मार्क्स है, बट इफ यू वांट टू शो द आंसर यू कैन शो। ओके, इन केस कि कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है तो इन दैट केस प्रोसेस पे मार्किंग मिल जाएगा, बट इफ यू आर डैम श्योर कि आंसर करेक्ट है, देयर इज नो नीड टू शो द कैलकुलेशन। ये सब डिस्कशन पहले हो चुका है। तो वी आर बिलीविंग दैट ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स बाई करना पड़ेगा ड्यूरेशन मैचिंग करने के लिए। लेट्स सी, तो कैलकुलेट और डिटरमिन है, ठीक है। समटाइम्स लेटर इंटरेस्ट रेट लेवल्स and the shape of the curve has changed. The liability has a present value of 690200000,
and modified duration of 7.55. The immunization portfolio has a market value of 70150,000 and a modified duration of 7.2. Lewis decides to close the duration gap with an overlay using CME traded US Treasury note futures. Based on the current cheapest to deliver bond, the basis point value of one futures contract is 75.1. तो जो CTD है ना फ्यूचर्स, उसका BPV दिया है, तो अपने BPV का गैप निकाल लेते हैं. जो लायबिलिटी है उसका BPV क्या है? 69,020,000 into 7.55 into 0001. Liability का BPV is money duration into 0.0001. Money duration is money into duration. So 69,020,000 into 7.55 into 0001. बताइए लायबिलिटी का BPV क्या आ रहा है? Yes, please. लायबिलिटी का BPV क्या आ रहा है? This multiplied by this into 0.0001. So I'm getting the answer 52110. इसका मतलब 52110 का इंटरप्रिटेशन कोई लिखेगा स्क्रीन पे? अंशुल, धवल, कोमल, तुषार, प्रकाश. 52110 का इंटरप्रिटेशन. लेट्स गो टू द बेसिक्स ना. 52110 का इंटरप्रिटेशन. अंशिका, 52110 का इंटरप्रिटेशन. लेट मी सी. यस, करेक्ट. 1 basis point change होने से liability will change by 52,110 in the opposite direction, ignoring convexity. For a 1 basis point, okay, for a 1 basis point change in yield, the liability का value will change by 52,110 in the opposite direction, ignoring convexity. यानी for a small change. ठीक है ना? ये उसका डॉलर चेंज आएगा 1 basis point के लिए. एसेट का क्या आ रहा है? एसेट का 70,150,000 into 7.2 into 0.0001. एसेट का 70,150,000 into 7.2 into 0.0001. Everybody is saying it's 50508. 50508. तो सर अपना एसेट का बीपीवी कम है, एसेट का बीपीवी बढ़ाना है. वी हैव टू इंक्रीज द एसेट का बीपीवी. तो एसेट का बीपीवी बढ़ाने के लिए वी हैव टू बाय टी नोट फ्यूचर्स और सेल टी नोट फ्यूचर्स. यस प्लीज. एसेट का बीपीवी कम है लायबिलिटी से, तो अपने को बाय करना पड़ेगा सेल बाय. तो आंसर इज लॉन्ग. वी शुड गो लॉन्ग नहीं, आंसर इज लॉन्ग. व्हाई शुड वी गो लॉन्ग समझाना है क्या? व्हाई शुड वी गो लॉन्ग समझाना है क्या कि एसेट का बीपीवी इज लेस देन लायबिलिटी का बीपीवी, therefore we should go long. No, वो नहीं पूछा है, वो नहीं पूछा है. केवल आंसर है लॉन्ग, केवल आंसर है लॉन्ग. ठीक है ना? हाउएवर कैलकुलेट जो बोला है, कैलकुलेट वाला पार्ट, उसके लिए आपको तो बीपीवी निकालना ही पड़ेगा. आप वहां नहीं लिखो तो भी चलेगा, पर आपको बीपीवी निकालना तो पड़ेगा. व्हाट इज द गैप? 52,110 minus 50,508 the whole divided by 75.1. 52,110 minus 50,508 the whole divided by 75.1. 52,110 minus 50,508 the whole divided by 75.1. What does it come to? 21.33. इसका मतलब 21 contracts. Why 22, सिद्धांत? It's always closer rounding off. 21.33. तो we'll go for 21 contracts. Nobody taught कि upper rounding off होगा. 21 contracts. तो आंसर है केवल एक वर्ड लॉन्ग, उसके नीचे 21 कॉन्ट्रैक्ट्स. फुल मार्क्स. लॉन्ग, उसके नीचे 21 कॉन्ट्रैक्ट्स. और कोई भी शर्मा रहा है तो यार मल्टीपल चॉइस पे भी तो यही करते हैं ना. ओके, लॉन्ग एंड 21 कॉन्ट्रैक्ट्स. कोई जस्टिफिकेशन, कोई कुछ नहीं पूछा है. और आपको कैलकुलेशन दिखाना है तो दिखा दो. बीपीवीएल इतना, बीपीवीए इतना, ठीक है, और बीपीवी ऑफ सीटीडी इतना. देयरफॉर नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू बीपीवीएल माइनस बीपीवीए डिवाइडेड बाय वो. मतलब आप दिखा सकते हो, इतना लिखने के बजाय केवल लास्ट कैलकुलेशन दिखा सकते हो. तो 21 कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो मेरे ख्याल से द बेस्ट एंड द कॉन्फिडेंट आंसर इज लॉन्ग 21 कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, लॉन्ग 21 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज द बेस्ट आंसर. आई डोंट नो व्हाट आई हैव रिटन. देखता हूं. तो ये सब वो ज्ञान है जो होता है टन टन के आंसर. लॉन्ग 21 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लॉन्ग 21 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. Long 21 futures contract. Aditya is saying, sir, sorry to persist on the same thing, but in recorded class, we were taught that for a single liability, convexity should be low, that is least dispersion.
ये जो आपको याद आ रहा आदित्य, आई मीन टू से, अगर सपोज दो पोर्टफोलियोज है, ठीक है, आई एम जस्ट एड्रेसिंग द डाउट, दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। आदित्य यहां देखिएगा एक बार प्लीज। ये if we look at the sorry if we look at the thing, portfolio X, portfolio Y, portfolio Z, let's assume portfolio X का duration was 8.04। हम्म तो उस केस में पोर्टफोलियो एक्स का ड्यूरेशन वाज क्लोज टू 8, चलेगा। पोर्टफोलियो एक्स का पीवीए इज ग्रेटर देन पीवीएल, वो भी चलेगा। पोर्टफोलियो एक्स का ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी इज 48.8 विच इज ग्रेटर देन कन्वेक्सिटी ऑफ लायबिलिटी। पोर्टफोलियो वाई का इज 37.5 विच इज ग्रेटर देन कन्वेक्सिटी ऑफ लायबिलिटी। विच वन वुड यू गो फॉर आदित्य? एंड उसके पहले एक जन ने सेम क्वेश्चन पूछा था, कैन यू प्लीज सी दिस एक बार आराम से, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। अब मैं बोल रहा हूं ये सेम सम है, पोर्टफोलियो एक्स का ड्यूरेशन जो है 8.04 है, तो सर ड्यूरेशन मैच कर रहा है एक्स और वाई दोनों का, इनफैक्ट एक्स वाई जेड तीनों का। जेड रूल्ड आउट है बिकॉज का पीवीए कम है पीवीएल से, तो रूल्ड आउट है। बट पोर्टफोलियो एक्स और पोर्टफोलियो वाई का पीवीए इज ग्रेटर देन पीवीएल, वो चलेगा। उस केस में कन्वेक्सिटी, सर कन्वेक्सिटी दोनों का ज्यादा है कन्वेक्सिटी लायबिलिटी से, तो इन दोनों में से कौन सा चुनेंगे? तो यहां बात हुआ था प्लीज मिनिमाइज कन्वेक्सिटी, मिनिमाइज कन्वेक्सिटी, subject to the fact that convexity should not go below convexity of liability. Am I clear? Okay, minimize convexity subject to the fact that convexity should not go above the below the convexity of liability. Is it okay? आदित्य एंड और एक स्टूडेंट जो पहले पूछा था, मिनिमाइज का मतलब ये था कि कन्वेक्सिटी अगर दो तीन पोर्टफोलियोज का ज्यादा है कन्वेक्सिटी ऑफ लायबिलिटी से, उसमें से वो वाला चुनेंगे जिसमें कन्वेक्सिटी सबसे कम है, इसलिए कन्वेक्सिटी जस्ट ग्रेटर देन कन्वेक्सिटी ऑफ लायबिलिटी। तो आदित्य को क्लियर है, उसके पहले भी जिसने पूछा था उसको क्लियर होगा। एंड उसका रीजन था डिस्पर्शन, डिस्पर्शन कॉजेज स्ट्रक्चरल रिस्क, डिस्पर्शन कॉजेज स्ट्रक्चरल रिस्क। ठीक है, ओके। प्रशांत किसी और ही दुनिया में ये बोल रहा है, ऑल्सो डिस्कस पेपर फॉर्मेट वंस ड्यूरिंग द क्लास। तो प्रशांत 11 क्वेश्चंस आते हैं, 6 आइटम सेट, 5 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, या 6 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स 5 आइटम सेट, ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आज के क्लास में, बिलीव मी। दिस इज नॉट अ क्लास फॉर बिगिनर्स कि चलो सीएफए लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है तुमको बताते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नीचे। तो ये आंसर हो गया अपना। अब थर्ड क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, यूजिंग द डेटा इन एग्जिबिट 2 and Lewis's assumption that all option adjusted spreads tighten by 25%. Using the data in Exhibit 2 and Lewis's assumption that all option adjusted spread tighten by 25%. Good news. Determine which bond will most likely deliver the highest expected excess return over the next year and justify, determine and justify। समझ गए? तो बॉन्ड बताना है, वॉट एवर बॉन्ड एबीसी है, तो बॉन्ड ए ये आंसर, और जस्टिफाई में बताना है वाई ए। आंसर का फॉर्मेट पता चल गया, आंसर का फॉर्मेट पता चल गया, और यही पता चल गया कि अगर फर्स्ट पैरा भूमिका थोड़ा सा पढ़े थे ठीक से, उसमें क्रेडिट स्प्रेड के बारे में बोल रहा था ना, क्रेडिट लास्ट चैप्टर के बारे में, तो लगता है सर एक्सेस स्प्रेड, एक्सेस स्प्रेड जो लोग पढ़े उनको पता होगा एक्सेस स्प्रेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनको पता होगा एक्सपेक्टेड एक्सेस स्प्रेड, अभी अभी चैप्टर कंप्लीट किए थे, ऑफ कोर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वाज इक्वल टू स्प्रेड जीरो। अभी जो स्प्रेड है उसके बाद माइनस चेंज इन स्प्रेड इनटू स्प्रेड ड्यूरेशन माइनस पीडी इनटू एलजीडी। ओके, एक्सपेक्टेड एक्सेस स्प्रेड बेंचमार्क से ऊपर अपने कितना एक्सपेक्टेड एक्सेस स्प्रेड होगा इज इक्वल टू स्प्रेड जीरो माइनस डेल्टा स्प्रेड चेंज इन स्प्रेड इनटू ड्यूरेशन, स्प्रेड ड्यूरेशन माइनस पीडी इनटू एलजीडी। ओके, दिस यूज्ड टू बी। प्रशांत फिर से बोल रहा है, प्लीज डिस्कस द पेपर फॉर्मेट ड्यूरिंग द क्लास। ओके, नेक्स्ट आइए। तो पता चल गया डिटरमाइन एंड जस्टिफाई है। तो अपने आते हैं यहाँ पे, आई थिंक प्रशांत जो फर्स्ट क्लास है ना लेवल 3 की, वो आपसे शेयर कराऊंगा वापस से। ठीक है, आप उस पर देख लीजिएगा, उस पर अच्छे से सारा कुछ बताया हुआ है। अभी वापस से लेवल 2 का रिजल्ट निकलेगा तो वो डिस्कस होता है, ऐसे एक एक बार डिस्कस करते हैं जब फर्स्ट क्लास होती है।
Let's see. ZAS also manages a satellite credit sleeve for Ravenbrook. Look at the language. Okay. The Ravenbrook has a number of sleeves. It's into equity, fixed income, and other things. Lewis's macro view is that global economy will accelerate in the coming year and that the market has overpriced recent geopolitical risk. तो ग्लोबल इकोनॉमी विल एक्सेलरेट इन द कमिंग ईयर. जब इकोनॉमी एक्सेलरेट होता है तो उस केस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हेन इकोनॉमी एक्सेलरेट्स व्हाट हैपेंस टू ट्रेजरी यील्ड? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में क्या होता है? व्हेन इकोनॉमी एक्सेलरेट्स व्हाट हैपेंस टू बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट? व्हेन इकोनॉमी एक्सेलरेट व्हाट हैपेंस टू बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट? सोच के बोलो, सोच के 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 बोलो. व्हेन इकोनॉमी एक्सेलरेट्स व्हाट हैपेंस टू बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स? they tend to rise. They tend to rise because जब economy accelerate करेगा तो in that case the central bank will change its stance and may think about raising rates. अब कोई कोई जन over optimize करे, बोला सर थोड़ा और रुक के रेस करेगा. That's okay. Okay. बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स जो है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूं. सम पीपल आर स्टिल इन द स्प्रेड का नहीं पूछ रहा, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. तो व्हेन द इकोनॉमी एक्सेलरेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है दे will tend to increase because central bank will change its stance. ठीक है. But what will happen to the credit spread? But what will happen to the credit spread? It will tend to narrow. Spread will tend to narrow. And that is why we studied empirical duration. That is why we studied empirical duration, where we criticized Macaulay modified and effective duration, because all these durations assume that when the spread will change or when the yield will change, nothing will happen to the spread. They assume no correlation, which is stupidity. There is a negative correlation. Economy बढ़ता है तो benchmark interest rate बढ़ता है, but spread tighten होता है because default risk goes down. I'm just revising, and therefore empirical duration is advised to be used. Anyways, the global economy will accelerate in the coming year and that the market has overpriced recent geopolitical risk. Okay, अभी जो चल रहा है, बोल रहा है मार्केट जो है ना, वो whatever चल रहा है ईरान और उसमें, उसको ज्यादा हाइप कर रखा है. अभी तो उल्टा हो गया साइन के बाद. She expects credit spread to tighten by 25% across the industrial sector. तो spreads can never tighten by 25%. वो बोल रहा है tighten by 25% of the spread. 25% of the spread. Okay, तो tighten होने वाला है. तो इन दैट केस पूछा है कौन सा बॉन्ड बेस्ट रहेगा इसका फायदा उठाने के लिए. लिविस वांट्स टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑफरिंग द हाईएस्ट एक्सेस स्प्रेड. ठीक है. तो बॉन्ड ए में व्हाट इज द स्प्रेड? बॉन्ड ए में द स्प्रेड इज 90. तो इट इज 90 minus the change in spread is 22.5. The change in spread is 22.5 multiplied by नेगेटिव 22.5. तो प्लस हो गया, इसको प्लस कर दे रहा हूं बिकॉज नेगेटिव 22.5 मल्टीप्लाइड बाय स्प्रेड ड्यूरेशन. मल्टीप्लाइड बाय स्प्रेड ड्यूरेशन. व्हाट इज द स्प्रेड ड्यूरेशन? द स्प्रेड ड्यूरेशन इज 5.8. द स्प्रेड ड्यूरेशन इज 5.8. ठीक है. एंड उसके अलावा माइनस पीडी इंटू एलजीडी. सो 1 year probability of default 0.3%. लॉस सिवियरिटी दिस, तो 0.3 इंटू 20. बट द लास्ट वाला पार्ट इज इन परसेंटेज, सो यू हैव टू बी केयरफुल. इसको आप बाय 100 कर दो, इसको भी बाय 100 कर दो, जैसे परसेंटेज आता रहे. ठीक है ना. सो बेसिकली इट्स पुटिंग अ फॉर्मूला. इस पे कुछ है ही नहीं, बट क्या फॉर्मूला दिखाना है? नॉट रिक्वायर्ड. आप तीनों का निकाल लो, फिर इसका भी निकाल लो. इसका 37.5 से स्प्रेड नैरो हो रहा है और इसका 75 से स्प्रेड नैरो हो रहा है. ओके. तो करंट स्प्रेड माइनस, या माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है बिकॉज स्प्रेड इज नैरोइंग, सो दैट इनटू स्प्रेड ड्यूरेशन एंड माइनस पीडी इंटू एलजीडी. ये पूरा 1 साल का बोला है फॉर द कमिंग ईयर. ये पूरा 1 साल का बोला है फॉर द कमिंग ईयर. अदरवाइज ये जो पीडी वाला पार्ट है उसमें एडजस्टमेंट होता है पीरियड का. ठीक है ना. और जो स्प्रेड वाला पार्ट है उस पर एडजस्टमेंट होता है पीरियड का. क्लास में फर्स्ट क्लास इस चैप्टर का बहुत बढ़िया से कराया हुआ है, जो यूट्यूब पे भी शायद होगा. तो थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी, डजंट रिक्वायर एनी ब्रेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन सो सबका निकाल दिया है, ऐसे परसेंटेज में किया है. देखो 0.9 माइनस दिस एंड दिस. ठीक है. पर बेस्ट आंसर कौन सा है? बेस्ट आंसर इज दिस. सी इज द आंसर और उसका स्प्रेड निकाल दो 4.89%. ठीक है. ये कंपेयर्ड विद द अदर टू का रिक्वायरमेंट नहीं था, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. हाईएस्ट स्प्रेड ऑफ 4.89% इतना सफिशिएंट है.
अगर आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सारा कैलकुलेशन दिखा देना। तो दैट विल डिपेंड अपॉन यू। डिटरमाइन एंड जस्टिफाई, दिस इज डिटरमाइन एंड दिस इज जस्टिफाई। उसका हाईएस्ट एक्सेस स्प्रेड है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हाईएस्ट एक्सेस स्प्रेड निकालने में तुमको ये दोनों तो निकालना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू शो, देयरफॉर मैंने शो कर दिया। बिकॉज हाउ विल यू नो दिस इज द हाईएस्ट अनलेस यू हैव कैलकुलेटेड फॉर ए एंड बी। तो इट्स बेटर देन टू जस्ट मेंशन इट आउट, ठीक है ना। ओके, नाउ further stuff that I wanted to discuss with you is that, are you aware of the fact that एग्जामिनेशन में जो कीबोर्ड है वो बहुत खराब दे रहे हैं? हैव यू हर्ड? एग्जामिनेशन में कीबोर्ड इज बैड। Ask anyone who has appeared for the examination. The keyboard is very, very bad. Everybody tells this. And if it is bad, it will be difficult for you to type a lot. If it is difficult for you to type a lot, ये भगवान का इंडिकेशन है क्या? भाई टाइप कम कर, ज्यादा कीबोर्ड मत यूज कर, ज्यादा दिमाग का कीबोर्ड यूज कर। यानी पहले सोचो, फिर लिखो। ओके, पहले सोचो फिर लिखो। सोचते सोचते मत लिखो, पहले सोच लो फिर लिखो। और सोचोगे तो बिलीव मी, अगर आराम से सोचोगे स्ट्रेस के बिना, तो इन दैट केस बहुत एफिशिएंटली लिख पाओगे, जो कि इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। अभिजीत, आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन समटाइम्स लेटर। ओके अभिजीत, आई विल कम टू इट। तो पहले सोचो फिर लिखो। दूसरा जो आज डिसाइड हुआ, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर फॉर अटेम्प्टिंग कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, नॉट द सेगमेंट एंड स्ट्राइक अप्रोच। यानी कि पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन से यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट प्लस एरिया, कौन से एरिया से पूछा है, देन पार्ट ऑफ द राइट अप। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, डिटरमाइन, जस्टिफाई, क्या बोल रहे हैं, एरिया समझ में आ जाएगा कौन से एरिया से पूछा है। देन यू रीड पार्ट ऑफ द राइट अप जो करते थे, सेगमेंट एंड स्ट्राइक वाला, देन द सेगमेंट जहां से पूछा है। यू विल बी बेटर ऑफ इन द कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आइटम सेट में, सेगमेंट एंड स्ट्राइक अप्रोच। एंड गोज विदाउट सेइंग, बाकी चीजें जो बोलते थे कि जो स्टूडेंट जितने बढ़िया से क्वेश्चन को रीड करेगा उतना फायदा, रश करने के बजाय। एज सुन एज आपने रश किया, आपका एफिशिएंसी लेवल डाउन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, पेपर छुटने का स्कोप होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो अभी मैं 3-4 क्लासेस में, मतलब जैसे आज संडे को हुआ ना, अब नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, ऐसे 3-4 सेशंस में अलग अलग एरियाज के हेल्प से आई विल डिस्कस एज टू कैसे कैसे आंसर करना है। अब क्या होता है, ज्ञान देने में फायदा नहीं, यहाँ पे ऐसे आंसर देना है। इट हैज टू बी एग्जाम्प्लीफाइड एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, इट हैज टू बी एग्जाम्प्लीफाइड, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बीच में अभिजीत वाज आस्किंग मी अबाउट कि सर हाउ डज प्राइस इफेक्ट एंड री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट कैंसिल आउट ईच अदर। तो अभिजीत, दिस वाज अ लेवल 1 का स्टफ, कि price effect means if interest rate goes up, we are able to reinvest the cash flow at a higher rate. But if interest rate goes up, the price goes down. That's the, sorry, reinvestment effect means if interest rate goes up, we are able to reinvest the intermediate cash flow at a higher rate. And price effect means the price goes down. So these compounding effect, discounting effect cancel out each other at Macaulay's duration. It was taught in level 1, and even if it was not taught in level 1 or you don't remember, level 3 में बहुत बढ़िया से हुआ है, नंबर लाइन ड्रॉ करके। मैं क्लास में अभी प्राइस इफेक्ट, री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट कटता है वो समझाने वाला नहीं हूँ। दिस इज नॉट अ टीचिंग का क्लास, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी एफिशिएंट माई सेल्फ एंड एट द सेम टाइम इफेक्टिव, ठीक है। द मॉक्स आर गोइंग ऑन, पीपल आर गिविंग द मॉक्स स्प्लेंडेडली। केवल लोग क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा लोग टान टान के लिख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। पर ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हो सकता है उनका टाइपिंग स्पीड फास्ट है और पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो नॉट एन इश्यू। जब तक कम से कम फुल मार्क्स वाला लिख रहे हैं, दे राइटिंग फुल मार्क्स वाला स्टाफ, बट दे राइटिंग एक्स्ट्रा स्टाफ, इट कुड बी शॉर्टर। आई हैव शोन कि शॉर्टर कैसे हो सकता है, ठीक है। सो इसी तरह we'll meet next week Sunday for the purpose of discussing another round of how to attempt constructive response questions, ठीक है। So that's it from my side. See you next Sunday.